सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hi all, this is Pravesh Kumar. As you know, they already started the lecture series of different leads and I am here to discuss about slide set 3 group A 2012 question paper. Okay, you can see here 2012. So, and in between, I will try to cover some additional points about lead and the topics I am covering here. Okay, so let's take the first question. The first question is, a gas of which y is equals to 1.5 is suddenly compressed to 1/4 of the initial volume, then the ratio of the final volume to, final pressure to the initial pressure. Okay, so here the keyword is actually in this question, the keyword is suddenly compressed, right? Because when the gas is suddenly compressed, it becomes a adiabatic process. It's called as adiabatic process, and you people know, in adiabatic process the heat transfer from the system to the surrounding is zero. Okay, so here suddenly compressed is the keyword. So by taking this, I'm going to solve this question. Let's take, this is a pressure 1 and volume 1, again pressure 2 and volume 2. As I already told you, like this is the adiabatic process. So for adiabatic process, the equation will become P V की power y या gamma जो भी कह लो is equals to constant. So here in this question there are two pressures and two volumes. So for this it will become P1 V1 gamma is equals to, please guys try to manage, there was touchpad nahi hai and I am working with my mouse. Okay, so P2 V2 and gamma. Okay, so he asked the ratio of final pressure to the initial pressure. The final means P2 by P1. So as you already did, as you can see, like if in P2 divided by P1, okay, so it will become V1 gamma, okay, and V2 gamma. Okay, and in this question you also can see the volume is also 1/4 of the initial volume. Okay, so in addition to this, V2 becomes 1/4 of V1, करेक्ट है. अब यहां पर बस ये इक्वेशंस पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है. तो अब V2 की जगह तुमको पुट करना है क्या, V1 बाय में 4. तो V1 बाय में 4 जब पुट करोगे देन V1 एंड V1 विल कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग विल 4 की पावर गामा. ओके, सो जब 4 की पावर मेरा गामा बचेगा यहाँ पे, सो 4 की पावर गामा, एज यू नो द गामा इज गिवन 1.5, y is equals to 1.5. ओके, सो 4 की पावर 1.5 की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब देखो वहां कैलसी तो होगा नहीं, सो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. 4 की पावर कितना होगा, ठीक है. 4 कैसे बनेगा अगर 2 की पावर में मैं लिखूं तो 2 की पावर 2, ठीक है. मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा दिखाता हूं तुमको. बिकॉज 2 इंटू व्हाट द मीनिंग ऑफ 1.5, द मीनिंग ऑफ 1.5 इज 3/2 इन पावर ऑफ. तो जब 3/2 लिखेंगे तो 2 से 2 विल कैंसिल आउट एंड द ओनली रिमेनिंग टर्म विल बी 2 की पावर 3, ठीक है, विच विल इक्वल्स टू 8. So if I will talk about P2 by P1 ratio, it will become 8:1. So let's see what the answer. Answer is D. So you can see the 8:1, answer is D. Okay,
So let's move on to the next question. A ball is thrown vertically in the air. If the air resistance cannot be neglected, then the acceleration of the ball at the highest point. ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, बहुत मतलब छोटा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछेंगे जब आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हो, ठीक है, जो थ्रो करते हो, तो उस टाइम पे जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेटर देन जी होता है। ओके, वो हमेशा ग्रेटर देन जी होगा। एंड जब वो डाउनवर्ड जाएगा, जब वो डाउनवर्ड फॉल होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। ओके, करेक्ट है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। यार देखो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। द डिस्टेंस इज मूव्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन यहां पर दिया हुआ है, कीवर्ड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सो वी ऑल नो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखो इसको कोई फॉर्मूले से नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूले भी दिए होते हैं इसके, एस इज इक्वल्स टू यूटी, तुम वेलोसिटी वो न्यूटन्स वाले में जाओगे सारा कुछ जो भी तुम्हारा स्पीड वगैरह का होता है, तो सिंपली एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, सिंपल लगाओ। ओके, ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी एंड देन वी इज ऑल्सो, अब यहाँ पे क्योंकि इसने पूछा है डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम टी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में पूछा हुआ है, तो देखो एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, अब डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, v का वैल्यू और क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। तो d बाय में t जब होएगा यहाँ पर तो नीचे कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब t स्क्वायर यहाँ पे होगा तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो d की जब तुम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो d कितना हो जाएगा, a इंटू में t की स्क्वायर, करेक्ट है। हियर a इज कांस्टेंट तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल्स टू t स्क्वायर, सो हियर इज द आंसर c, टी स्क्वायर। ओके यार इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बाकी तुम देख लो, जो डायरेक्टली हो रहे हैं मैं उनको कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज नॉट दैट मच टाइम टू कवर ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इट इज 150 क्वेश्चंस एंड इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व 150 क्वेश्चन इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स। ओके, चलो अगर जल्दी भी मैं करता हूँ तो 1.5 आवर लेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी हियर। ओके, so these are direct question, right? You can see the direct question is a direct formula based question, you can go through it। मैं थोड़ा concept wise ही बताऊंगा, like this fifth question is the two bodies are projected at the angle of theta and the second is 90 minus theta to the horizontal axis with the same speed, the ratio of their time of flights is, तो सीधा direct question है ये। देखो time of flight का formula क्या होता है, t1 is equals to twice of u, 2 of u, u is the initial velocity या जो भी कह लो तुम उसको, sin theta, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय में जी। अब यहां पर मेरे को दो एंगल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब दो टी1 होंगे मेरे यहाँ पे, तो t1 इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा एंड द सेकंड इज t2 इज इक्वल्स टू, t2 मेरा क्या हो जाएगा 2 ऑफ v। अब देखो साइन थीटा की जगह मैं वहां पर क्या पुट करूंगा 90 माइनस थीटा, जब मैं 90 माइनस थीटा यहां पर पुट करूंगा तो इट विल बिकम कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा मेरा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में जी। तो अब ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज, तो t1 बाय में t2 अगर तुम अब करते हो यहाँ पे तो देखो क्या बनेगा, ऑल विल बी कैंसिल आउट, 2v जी बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा, तो t1 बाय में t2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में कॉस थीटा एंड द साइन थीटा बाय में कॉस थीटा विल बिकम tan थीटा। ओके, तो t1 बाय में t2 विल इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। अब रेशियो की बात करेंगे तो इट विल बिकम tan थीटा रेशियो 1, तो आंसर इज सी, tan थीटा रेशियो 1। अब देखो द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 kg ऑफ gases per second at a velocity of 400 meters per second, the accelerating force on the rocket is, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स लगेगा वो क्या उस पे, ठीक है। जनरली यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है तो जनरल न्यूटन के फॉर्मूले तुमको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, m ए, ठीक है। अब यहां पर मास जो भी है इजेक्टिंग इज 0.5 kg से पता लग गया तुमको कि ये मास है, तो यहां पर पुट कर दोगे कितना 0.05 kg, ठीक है। एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन पूछा है यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, v बाय में t यहां पुट करोगे, लेकिन यहां पर अब देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है और इसने वेलोसिटी कितनी गेन करी है पूरी की पूरी 400 मीटर्स पर सेकंड इज t, ओके सॉरी इज v बाई टी। तो अब यहां पर क्या करोगे v फाइनल, ठीक है, माइनस v इनिशियल अपॉन में t, इनिशियल इज 0, फाइनल इज
400 मीटर पर सेकंड, तो v बाई टी की वैल्यू कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, तो 400 इंटू में 0.05 इज मल्टीप्लाइड, तो कितना होगा ये, इट विल अराउंड 0.05 into 400, it will become 20 newtons, तो आंसर इज ए 20 न्यूटन्स। ओके, सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली तुम कर सकते हो। हाँ, सेवंथ क्वेश्चन है, देखो, अ पार्टिकल मूव अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ x इज इक्वल्स टू a cos pi t, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2.5 सेकंड्स इज, तो इसको निकालना है। देखो x इज इक्वल्स टू a cos 2 pi t। अब देखो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैकेनिकल का स्टूडेंट होगा या कोई और डिपार्टमेंट का होगा तो कर सकता है, अगर और जिसने पढ़ा होगा वो भी कर सकता है, बट ट्राई टू कवर दिस क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को तुम फेजर से कर सकते हो, इफ पीपल हैव डन एंड इफ पीपल हैव सम कांसेप्ट अबाउट फेजर, ठीक है। तो मैं नहीं जाऊंगा उन सब चीजों में, डायरेक्ट अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करूंगा जितना मुझे आता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू a cos pi t एंड द टाइम इज 2.5 सेकेंड्स, 0 से 2.5 की बात कर रहा है ये। ओके, सो x इज इक्वल्स टू a cos pi t, ठीक है, एंड टाइम कितना लिया इसने 2.5, तो स्टार्ट तो 0 से ही हुआ होगा ना, तो 0 to 2.5। ओके, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक एक्सिस और एक सर्कल ड्रॉ कर लो, हमेशा एक सर्कल ड्रॉ कर लो इस तरह से, ऐसे सिंपल हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालो एट t इज इक्वल्स टू 0, एट t इज इक्वल्स टू 0 जब यहां पर पुट करोगे तुम, तो x विल बिकम, क्योंकि cos थीटा 0 पे मैक्सिमम होता है, तो यहां पर x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल्स टू a, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सपोज करो मैंने यहाँ पुट कर दिया इसको, ये मैंने इसको ले लिया a, यहाँ पर तुम कहीं भी ले सकते हो, मैं यहाँ जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, तुम हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हो, वर्टिकली भी ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस एक्चुअली। ओके, कहीं भी ले लो तुम उसको, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि बीच में तो ऑलरेडी कहीं आएगी नहीं, ये यहाँ कहीं होगी। ओके, ऑब्वियसली। एंड द सेकंड वन इज, अगर तुम इसकी वैल्यू 2.5 रखते हो तो देखो कितना आएगा ये, ठीक है। अगर तुम इसकी वैल्यू t की जगह 2.5 करते हो तो 2.5, तो cos पाई इंटू 2.5 को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, 25/10 लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो 5 5 25, 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 5 पाई/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 5 पाई/2, तो cos 5 पाई/2, ये हो गया cos 5 पाई/2। इतना हुआ क्लियर? मैं इसलिए बोलता भी जा रहा हूँ क्योंकि कुछ साफ देख नहीं रहा है, बिकॉज माउस यार क्लियर इतना लिखा नहीं जा रहा है, बट मैं भी फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो cos पाई/2, a cos पाई/2, ठीक है। अब ये कहां पर होगा, ठीक है, यही अब देखना है ना कि ये अभी तो 0 तो तुमने प्लॉट कर दिया, अब इसको कहां प्लॉट करोगे तुम, तो ये 5 पाई/2 पे प्लॉट करोगे। अब देखो 5 पाई/2 यहां से कितना होगा, ठीक है। तो या तो तुम डायरेक्ट यहीं से उठा के कर दो, या फिर तुम फेस एंगल देख लो, तो फेस एंगल देखोगे तब भी यही आएगा जनरली, अगर तुम फेस एंगल की भी बात करते हो। चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूं डायरेक्टली, 5 पाई/2 का मतलब होता है 450, तो 450 मींस 360 से कितना ज्यादा हुआ 90। तो अब देखो मैंने स्टार्ट अपना यहां से किया था फेजर, ठीक है, अपना फेजर स्टार्ट किया यहां से, जब 360 जाएगा तो ये पूरे का पूरा पाथ कवर कर लेगा, वापस 160 यहाँ पे, 160 में 90 तुम एडिशनल ऐड कर दोगे, ये यहां पर वापस आ जाएगा यहां पर। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x इज a here, ठीक है। तो अब इसने पूछा है कि टोटल कवर डिस्टेंस, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, ये देखो क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर इन 2.5 सेकंड, और 2.5 सेकंड में ये यहां आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, ठीक है। अब ये ऐसे मत करना सिर्फ 90 नहीं, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया यहाँ आने के लिए, वो देखो वो इसने कवर किया है, पहले इसने 360 कवर किया, तो 90 अगर देखूंगा तो ए देखो पहले A1 A2 हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ A3 A4 A5, मतलब इसने 5 बार A कवर किया यहाँ आने के लिए। तो जो मेरा टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा
वो मेरा कितना हो जाएगा 5A, बिकॉज A1 A2 A3 A4 ऑल आर इक्वल। ठीक है, अब ये देखो ये तो हो गया यार सिंपल, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 5। सो जैसा कि मैं स्किन इफेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि थिक और थिन वायर्स के लिए, तो जो मेरा थिन वायर होता है उसके अंदर जो स्किन इफेक्ट होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए, जबकि थिक वायर्स में बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए। एंड 33 इज जो द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द हाईएस्ट एक्यूरेसी विद प्रेस्क्राइब फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, ये देखो फ्रीक्वेंसी रेंज की जब भी बात करते हैं और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो हम डायरेक्टली आंख बंद करके आंसर मार सकते हैं रेक्टिफायर टाइप। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 34 व्हाट इज द नेचर ऑफ द करंट कॉइल एंड द वोल्टेज कॉइल ऑफ द वाटमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके लिए नया होगा थोड़ा सा टॉपिक। तो जब हम वाटमीटर की बात करते हैं, देयर आर मल्टीपल वाटमीटर, सिंगल वाटमीटर मेथड, टू वाटमीटर मेथड, थ्री वाटमीटर मेथड टू मेजर द पावर। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है कि एक करंट कॉइल होती है, ठीक है, लोड के साथ में अगर जो जहां करंट मेरा फ्लो कर रहा है आरएल में, ठीक है, एक सोर्स लगा होगा ऑब्वियसली, वी मेरा लगा होगा, इसको हम बोलते हैं जो सीरीज में अभी जो कॉइल लगती है इसको हम बोलते हैं करंट कॉइल। ये इंडक्टिव है, देखो इंडक्टर की तरह मैंने बनाया तो इंडक्टिव है। द सेकंड इज इसने वोल्टेज कॉइल बोला है, तो वोल्टेज कॉइल इस तरह से लगती है, इसके अंदर इसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ी होती है। तो करंट कॉइल इन सीरीज होती है और जो ये वाली होती है इसको हम कहते हैं वोल्टेज कॉइल, इसको हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अगर इंटरचेंज करके आ जाए प्रेशर कॉइल तो घबराना मत, ये प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल सेम चीज है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, बट नेचर दोनों का इंडक्टिव है। बट जो प्रैक्टिकल वाटमीटर होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर कॉइल है इसके साथ में एक बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाता है इन सीरीज। क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन है कि यार देखो जब नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये अगर लो पाथ मिलेगा इसको तो सारा का सारा करंट इधर आने लग जाएगा, तो हमको लेकिन मैक्सिमम करंट लोड की तरफ डाइवर्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस हम रखते हैं कि मैक्सिमम करंट इधर डाइवर्ट हो। तो अब देखो जब हाई प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो जो ये टोटल एरिया हो गया या ये जो टोटल लाइन हो गई ये हाईली रजिस्टिव हो गई, हाईली इंडक्टिव, ऑब्वियसली हाईली रजिस्टिव हो गई है। ठीक है, तो हम वोल्टेज कॉइल और प्रेशर या प्रेशर कॉइल को प्रैक्टिकली हाई रजिस्टिव कहते हैं और करंट कॉइल को हाई इंडक्टिव कहते हैं, सॉरी हाई इंडक्टिव कहते हैं। ठीक, तो अब ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोथ इंडक्टिव बोथ रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड रजिस्टिव। तो करंट कॉइल मेरी इंडक्टिव है, वोल्टेज कॉइल मेरी रजिस्टिव है, तो इंडक्टिव और रजिस्टिव रिस्पेक्टिवली। अ गैल्वेनोमीटर 35 है, गैल्वेनोमीटर इज अ फुल स्केल करंट ऑफ IO एंड द रेजिस्टेंस इज इतना, व्हाट विल द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ RSH की वैल्यू और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, 10,000 100, चलो एक बार सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे, थोड़ा तुमको बता भी दूं मैं इसको, ये थोड़ा सा नया है थोड़ा गैल्वेनोमीटर के लिए भी। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर जो ये होता है ना ये एक्चुअली पीएमसीसी इंस्ट्रूमेंट ही होता है, पीएमसीसी को हम एज अ गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं और उसका जो मैक्सिमम रेंज होता है जितना वो करंट को मेजर कर सकता है वो तो 100 मिली एम्प्स, बस इससे ज्यादा नहीं मेजर कर सकता। तो इससे ज्यादा मेजर कराने के लिए मेरे को उसकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, उसके तरीके होते हैं कि कैसे करते हैं। तो सपोज करो मेरा एक गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ये रहा गैल्वेनोमीटर जिसका अपना मैक्सिमम रेटिंग है करंट का जितना मेजर कर सकता है, उसका कुछ आरएम भी होगा क्योंकि प्रैक्टिकल है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये है इसको हमने लगाया हुआ है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ या समथिंग जो भी तुम इसको कह लो। तो ये पूरा मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ 100 मिली एम्प्स तक मेजर करता, बट अगर ज्यादा हुआ तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक प्रैक्टिकल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसका नाम दे दिया RSH, रेंज को इंक्रीज करने के लिए RSH। तो इसके अक्रॉस जो करंट भी फ्लो करेगा वो मेरा क्या करेगा ISH। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है बट ट्राई टू मैनेज यार, ISH, और इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है IM। ठीक है, तो अब ये देखो तो ऑब्वियसली I जो होगा वो IM से ज्यादा होगा। ठीक है, और मेजर हमको I ही करना है जो कि 100 मिली एम से भी ज्यादा है, तो ये कितना टाइम से ज्यादा है I से, वही होता है मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर या जिसको तुम मल्टी एम बोलते हो जो अभी जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो I इज ऑलवेज इक्वल्स टू M ऑफ IM, क्योंकि इसी का मल्टीपल होगा तभी तो मेजर कर पाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, एनी वैल्यू इट कैन बी। तो यही हमको मेजर करना है। तो ये देखो इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ मैं डिस्कस करूंगा कि इस तरह के और भी अगर क्वेश्चंस आ जाए कुछ और पूछ ले तो आप उसको इजिली मैनेज कर सको। ठीक है, तो अब इसमें जो देखो पैरेलल सर्किट्स है तो दोनों के रेजिस्टेंस या वोल्टेजेस सेम होंगे, तो RSH
इज आर एस एच आई एस एच इज इक्वल्स टू, पैरेलल में दोनों सेम होगा, वोल्टेजेस सेम होती हैं, तो आई एम आर एम दोनों का सेम है। ठीक है, अब देखो आर एस एच की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, या फिर चलो यहां से एक काम करो, आर एम की वैल्यू निकालो, पहले आर एम की वैल्यू निकाल लो। तो आर एम की वैल्यू हो जाएगी क्या, आर एस एच की वैल्यू हो जाएगी अपॉन में आई एम, और आई एस एच इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके मेरा दिया हुआ है। तो जो आई एस एच की वैल्यू है देखो वो कितनी हो जाएगी, आई एस एच की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो आई एस एच इज इक्वल्स टू आई माइनस आई एम, यहां पर बस पुट कर दो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, आर एम आर एस एच को आर एम के साथ ले जाओ, आर एम बाय में आर एस एच। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी तुमको दिख जाएगा कि इतनी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत क्या है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो पता चलेगा अभी। आई एस एच क्या हो गया, आई माइनस आई एम, तो आई माइनस आई एम डिवाइडेड बाय में मेरा आई एम हो गया, तो डिवाइडेड बाय में आई एम इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, आई बाय में आई एम माइनस में 1, ये ही आ गया मेरा रिजल्ट अभी के लिए। तो ऐसे ही तुम और भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आई वाई में आई एम मैंने यहाँ पर लिख दिया, आई वाई में आई एम, ये मेरा आई एम है, और ये मेरा ऊपर कितना था आई, तो टोटल करंट है मेरा माइनस में। अब देखो आई बाय में आई एम ही क्या है मेरा, एम था, एम की वैल्यू क्या थी, अगर तुम इसको यहां से नीचे ले जाओगे, इसके नीचे आई बाय में आई एम, तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया। तो आर एम इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन में आर एस एच इज इक्वल्स टू एम माइनस में 1। देखो आर एम की वैल्यू गिवन है, आर एस एच की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, आर एम बाय में आर एस एच कर दो सिंपली। आर एम की वैल्यू तुम्हारी देखो कितनी दे रखी है यहाँ पे, आर एम 1000, ठीक है 1000 ओम्स दे रखी है, और जो आर एस एच शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 ओम्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दोगे और 1 ऐड कर दोगे, 10 आ जाएगा, प्लस 1 11 आ गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी। डन, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी, और तुम्हारा एम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो निकालना था। डन, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। What is the following method is used for accurate measurement of low resistance? यार ये देखो ये सारा लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस इन सबके तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट मेजर करने के। ठीक है, तो मैं इतना तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, बट इतना जरूर बता देता हूँ कि लो रेजिस्टेंस में आता है 1 ओम से कम रेजिस्टेंस को हम लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस आता है, मीडियम रेजिस्टेंस होता है 1 से 1000 किलो ओम तक। ठीक है, और जो मेरा लार्ज रेजिस्टेंस होता है या हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हम मोर देन 1000 रखते हैं। ठीक है, मोर देन 100 किलो ओम्स। लो रेजिस्टेंस को मेजर करने का मैं बता देता हूं यहीं से क्वेश्चन से ही। ठीक है, ये देखो एमीटर वोल्टमीटर मेथड जो है ये भी देख लो, यहां से इसको मेजर किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। कैल्विन डबल ब्रिज होता है, ये मेरा होता है स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर करने, लेस देन 1 ओम। ठीक है, और मेगर एंड लॉस चार्ज मेथड ये दोनों के दोनों वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मोर देन 100 किलो ओम्स। तो तुम्हारा आंसर ये हो गया, और बाकी भी अगर आ जाए तो उसको देख लेना, बाकी और भी होते हैं तो वो तुम एक बार डिस्कस कर लेना। और जो टेलीग्राम का ग्रुप है जीसीसी लीड का, वहां पर जाओ, वहां तो वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, तुम वहां से जाके इसको ले सकते हो। जीसीसी लीड कोचिंग एट Telegram. Which of the following input is applied to the bridge used for measurement of inductance with high quality factor Q? देखो इंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, फॉलोइंग इज अप्लाइड टू मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस विद हाई क्वालिटी फैक्टर। देखो हाई क्वालिटी इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए सबसे पहले मैं बता दूं तो फॉलोइंग, अच्छा इनपुट पूछ रहा है, सॉरी मेरे को लगा नीचे वाला क्वेश्चन, ओके डन, ठीक है। ये सिंपली हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए मेरे को पूछ रहा है, तो इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव ही होगा यार ऑब्वियसली। ठीक, इसका आंसर 37 का यही होगा। अब फ्रीक्वेंसी इज मेजर बाय द फॉलोइंग ब्रिज। फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यार हम देखो वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स का, सॉरी वेन ब्रिज
वेन ब्रिजेस का हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। बाकी तुमको बताता हूँ, मैक्सवेल्स ब्रिज का हम इंडक्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, श्रिंक्स ब्रिज का हम कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए करते हैं, और हैवी साइड कैम्फल ब्रिज का इसका यूज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं, अननोन म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अ quantity with electronic instrument, its input impedance in comparison with the impedance of circuit under measurement should be। आइडियली देखो क्या होता है कि जब भी मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जब भी अगर मैं मेजर करता हूँ, ठीक है, किसी का वोल्ट मीटर, तो वो वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो जिसको तुम मेजर कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट, उसका कुछ अपना इनपुट रेजिस्टेंस होगा, जिससे मेजर कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे, नया रेजिस्टेंस बनाएंगे जो सबसे ज्यादा कम होगा, तो जो मेरा वैल्यू होगी वो डाइवर्ट कर जाएगी। तो आइडियल केस क्या है? आइडियल केस ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट मैं मेजर कर रहा हूं, जिससे मैं मेजर कर रहा हूं, उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, फिर जीरो कह सकते हैं, होना चाहिए, क्योंकि जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस तो रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसका जीरो होना चाहिए। द करंट प्रोब ऑफ सीआरओ इज इक्विवेलेंट टू, यार देखो सीआरओ का जो करंट प्रोब होता है वो इक्विवेलेंट होता है कि एक, अगर तुम एक ऐसा कॉइल लगा दोगे, उसका जो प्राइमरी है, एक टर्न प्राइमरी में दे दिया जाता है और मल्टीपल टर्न्स का सेकेंडरी टाइप में दे दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आगे ये कोएक्सियल केबल की तरह जाके प्रोब में मिलते हैं। तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, करंट प्रोब का। इसको तुम देखोगे समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 1 टर्न प्राइमरी एंड मैनी टर्न विद सेकेंडरी, इसका आंसर देखो बी है। अब 41 क्रिपिंग मीन्स अ स्लो मूविंग movement of a disc of instrument when only current coil is energized, क्रिपिंग और स्लो। ये क्रिपिंग का मतलब देखो, पहले सबसे पहले क्या होता है, जो तुम एनर्जी मीटर्स होते हैं, ये सबके लिए एक नया टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर देते हैं। देखो क्रिपिंग होता है जब एनर्जी मीटर, जो तुम्हारे घर में मीटर्स लगे होते हैं, जब कोई भी तुम्हारा लोड एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो तब, जब तुम्हारा लोड एक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में एक डिस्क होती है जो मूव करती है, तो उसको हम कहते हैं क्रिपिंग। उसके अंदर एक डिस्क होती है जिसमें मूवमेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं क्रिपिंग नो लोड कंडीशन में। तो अब ये देखो, अगर ये एनर्जी मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जरूर कुछ वाटमीटर वगैरह जैसा ही होगा, ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है वाटमीटर जैसा। तो करंट कॉइल होती है, प्रेशर कॉइल भी ऐसे लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज भी ले लिया है। तो यहाँ पे नो लोड कंडीशन है, जब नो लोड कंडीशन है, ये लोड है नहीं, तो यहाँ पर जो करंट है कॉइल के थ्रू, करंट कॉइल के थ्रू, ये करंट कितना हो जाएगा, जीरो, और जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम इसके अक्रॉस रहेगा, प्रेशर कॉइल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि व्हेन ओनली करंट कॉइल इज बोथ करंट एंड वोल्टेज, ओनली वोल्टेज कॉइल इज एनर्जाइज, लोड इज इंडक्टिव, ओनली करंट, देखो करंट कॉइल एनर्जाइज नहीं होती ऑब्वियसली, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, बोथ करंट एंड वोल्टेज कॉइल्स आर एनर्जाइज फ्रॉम वीक सोर्स, नहीं, ओनली वोल्टेज कॉइल इज एनर्जाइज, सिर्फ ये एनर्जाइज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मेरा बी। बर्डन ऑन एन करंट ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड एज, ऑब्वियसली यार सी होगा इसका आंसर। लेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ वायर, कंडक्टिंग वायर इज पॉजिटिव, हाउ इट रेजिस्टेंस विल चेंज विद द इंक्रीज इन करंट थ्रू इट। तो देखो पॉजिटिव क्या कह रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वायर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब भी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो मेरा रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द इंक्रीज इन द करंट, देखो करंट अगर इंक्रीज होगा किसी भी वायर के थ्रू, वहां पर हीट डेवलप होगी, उस वायर के अक्रॉस हीट डेवलप होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, लीनियरली इंक्रीजिंग। The maximum flux in a transformer is phi m when the primary voltage is V and the frequency is f hertz. The primary voltage is double and the frequency is half, then the new flux will be। देखो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जब भी हम वोल्टेज डेवलप की बात करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई फाई, ठीक है, एन के भी होता है, लेकिन एन यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ फाई और एफ की बात चल रही है, इज इक्वल्स टू फाई एफ, ठीक है, ये नॉर्मल आइडल केस होता है। ओके ओके, if the primary voltage is doubled and the frequency is halved, then the new flux will be। देखो वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज इज डबल, मतलब V की जगह, E की जगह हम 2E कर देंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फाई, तो और फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो गई, हाफ हो गई, 2, ठीक है। तो अब यहां पर जो मेरी फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4E बटे में F, अगर इसको अरेंज करूंगा इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है, ये कितने के बराबर हो गया, E1 बाय में F1। ये देखो अगर तुम इसको अरेंज करते हो, पहले वाले को, ऊपर वाले को, यहाँ पर E1 डिवाइड बाय में F1 करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एम, ठीक है, फाई एम था ही मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 4 फाई एम।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 5 ओम। अब 45 a permanent magnet moving coil emitter is connected to a 50 hertz AC circuit which 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग द मीटर विल रीड। अब देखो यार पीएमसीसी की जब भी हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एवरेज करंट्स को ही मेजर करता है, ठीक है, डीसी करंट्स को, एवरेज करंट्स, ठीक है। तो ये हमेशा सिर्फ एवरेज या एसी, एवरेज या डीसी करंट से मेजर करता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी 5 एम्पियर इज फ्लोइंग। तो ये देखो यार 50 हर्ट्ज एसी है तो एक एसी का एवरेज कितना होगा, 0 होगा, तो ये कितना मेजर करेगा, 0, ठीक। तो पीएमसीसी का याद रखना। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमो वगैरह की बात करें, कुछ उनकी बात करूँ, तो वो सारे आरएमएस वगैरह मेजर करते हैं, ठीक। तो इसका एक बार लिस्ट वगैरह देख लेना इनके फीचर्स की, भी मैं बताता हूँ उसके बाद कि क्या क्या कहाँ से तुम थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। व्हाट डज द रिएक्टिव पावर इन सर्किट सिग्निफाइज। देखो रिएक्टिव पावर, देखो रिएक्टिव पावर का मतलब कंजम्पशन नहीं होता, रिएक्टिव पावर का मतलब होता है जो इंडक्टिव और कैपेसिटर होते हैं मेरे, वो सारे के सारे एनर्जी को लेते हैं फिर वापस सोर्स को डिलीवर करते हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम तो नहीं होगा, कंज्यूम टर्म ही हटा दो पूरे का पूरा, रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर भी बी है, ठीक है। A 2 DC machines A and B are designed with a armature circuit resistance value 0.4 ohm, 1.2 ohm। यार ये सीधा सीधा मशीन्स का क्वेश्चन है आर्मेचर का, उसको एक बार तुम सिंप्लीफाई करोगे, वहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स निकाल लेना बस, उसमें दोनों के थ्रू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जब निकालोगे ना, तो ये जो 0.4 ओम वाला इसके पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 1.2। जब पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे तो मशीन ए का जो साइज होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मशीन बी, तो मशीन ए है इसका आंसर। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 48 का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो V1 बाय में V2 सिंपली है, डायरेक्टली कर सकते हो इसको, और I2 बाय में I1, ठीक है, इज इक्वल्स टू A या समथिंग। अब देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, I2 इज इक्वल्स टू I1 बाय में A पहला, I2 इज इक्वल्स टू I1 बाय में A पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। I2 इज I1 A पॉसिबल है, देखते हैं बाकी भी। V1 इज इक्वल्स टू A V2, V1 इज इक्वल्स टू A V2, हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू A V2 ये भी पॉसिबल है, तो ये भी राइट है। C I2 इज इक्वल्स टू A I1, I2 इज इक्वल्स टू A I1, जैसा कि मैंने पहले बोला था, हाँ ये भी पॉसिबल है। एंड द फोर्थ इज V2 इज इक्वल्स टू V1 बाय में A, V2 V1 बाय में, हाँ V2 को इधर भेज दोगे A को इधर लगे तो V1 बाय में A इज इक्वल्स टू V2, तो इसका मतलब मेरा आंसर है क्या इसका A, ये मेरा नहीं है। 48 49 if the flux per pole DC generator is above the speed is doubled it generated EMF will be। देखो EMF का फॉर्मूला जनरेटर में क्या होता है, जनरेटेड EMF का 5 ZNP अपॉन में 60 है, तो इसका हो जाएगा 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू n, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ द जनरेटर इज हाफ्ड, ठीक है, फ्लक्स पर पोल इज हाफ्ड एंड स्पीड विल बी डबल्ड, ठीक है, n की जगह 2n कर दो, 2 से 2 वापस से कैंसिल आउट हो गया, 5n ही बचा, तो इसका मतलब कांस्टेंट है पहले की तरह ही है, रिमेन सेम हो जाएगा बी। द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन द वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल्स टू द, देखो वहां पर क्या होता है, ट्रांसफर कोर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट लॉसेस होते हैं जनरेटर्स वगैरह के अंदर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी कांस्टेंट लॉसेस। इन एसी मोटर द नो लोड करंट, यार देखो लीड और लैग वाला क्वेश्चन है, ऐसा तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो, मैं तुमको ये भी मैं नहीं कराऊंगा, तुमको मैं बता दे रहा हूँ, बस इसको कर लेना। ऑन विच ऑफ द मोटर द स्लिप टेस्ट इज परफॉर्म, ये डायरेक्टली सिंक्रोनस मोटर के लिए यूज होता है स्लिप टेस्ट, ये याद रखना, कहीं इंडक्शन मत कर गलती से करके चले आना। ये सारे एक स्लिप वगैरह के क्वेश्चन है, एक बार तुम डीसी मोटर वगैरह जब तुम पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली तुम पढ़ रहे हो तुम देख लेना उसको, ठीक है। अब द 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट इन स्टार। देखो जब भी हम स्टार टू डेल्टा हम कन्वर्जन करते हैं, ये हो गया मेरा डेल्टा, स्टार इसके अंदर में मेरा फॉर्म होगा, ठीक है। तो जब भी स्टार टू डेल्टा जब हम फॉर्म करते हैं और अगर वो सेम रेजिस्टेंस रहे डेल्टा में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार में बनता है वो R/3 हो जाता है, ठीक है। अगर सबका सेम है डेल्टा में R R R R, तो स्टार में जो होगी वैल्यू रेजिस्टेंस की वो R/3 हो जाएगी, मतलब 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर 3 दे रखा है ऑलरेडी, डिक्रीज 1/3 टाइम्स 1, बी है इसका आंसर। द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देखो 10 ओम एंड 20 ओम एंड 10 ओम, ठीक है, 20 एंड 10 दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, करंट जा रहा है, सेम करंट तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली, द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो इतना तो पता है कि 10 ओम के जो थ्रू करंट जाएगा 20 ओम से ज्यादा होगा, ठीक है, बिल्कुल।
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो पहला देखते हैं, A is 200% ऑफ द करंट थ्रू द 20 ओम, B is equals to the current supplied by the voltage, तो ये तो हो ही नहीं सकता, B equal to the current supplied by the load, नो। 50% ऑफ द करंट, तो 50% मतलब हाफ हाफ होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एंड C is equals to the current through the 20 ohm in resistance, नो। इसका मतलब क्या बचता है, इसलिए 200%। इन अ ट्रांजिस्टर, तो इतना मैंने तुमको बताया। देखो ये काफी ज्यादा वेटेज का टॉपिक था, तो इसको अच्छे से कर लेना। और तुमको मैं बता दूं इसके लिए यार, देखो ज्यादा मत करना। अगर तुम गूगल वगैरह भी ऑब्वियसली यूज कर रहे हो, एक बार क्लास में देख लेना, टीचर से भी पूछ लेना। और अगर नहीं भी हो सकता है तो जनरली 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पीएमसीसी, इलेक्ट्रोडायनामिक, तो 2 ही 3 टॉपिक आते हैं इसके अंदर मेनली। एक तुम्हारा एरर एनालिसिस आता है, एक तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट आता है, एक तुम्हारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है मेजरमेंट वगैरह का, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स में 4 ही 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पीएमसीसी हो गया, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हो गया, और उसके बाद तुम्हारा ये कहते हैं रेक्टिफायर वगैरह वाला हो गया। तो इन सबको एक बार देख लो, इनके सिर्फ 3-4 चीजें देख लो। कंस्ट्रक्शन वगैरह मत पढ़ना, फीचर्स क्या है इनके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और ये किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, और सबकी इक्वेशंस देख लेना। क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ये भी आ जाएगा कि पीएमसीसी वगैरह के इनकी स्केल्स जो मेजरमेंट होती है, एनालॉग में स्केल्स होती हैं, तो किस तरह की स्केल्स होती हैं, क्रैम्प्ड स्केल्स होते हैं, यूनिफॉर्म स्केल्स होती हैं। तो जो भी लीनियर डिवाइसेस होते हैं, इनके लीनियर स्केल्स होते हैं, और जो भी मेरे स्क्वायर डिवाइसेस होते हैं, जिनका जो रिस्पॉन्स होता है, स्क्वायर रिस्पॉन्स होता है, उनके क्रैम्प्ड होते हैं, ठीक है। तो क्रैम्प्ड का मतलब ये होता है, तो थोड़ा सा पहले कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। एरिया ज्यादा रहेगा इसका, फिर सॉरी एरिया स्पेस ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे करके स्पेस और रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो इसको कहता है क्रैम्प्ड। और यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल्स, ठीक। ये इतना डन हो गया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस पे। इसके लिए काफी बच्चे एक सानी वगैरह यूज करेंगे। भाई ग्रंथ मत पढ़ने बैठ जाना, एक सानी पूरा ग्रंथ है, तो थोड़ा गूगल से ट्राई कर लेना इधर उधर से। बाकी अगर कुछ होता है तो मैं बार सर से बात करके, हो सकता है तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा दूंगा तुमको मटेरियल इसके लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं है। बाकी तुम एक बार सर से बात कर लेना, और एक बार चैनल पे तुम विजिट कर लेना जीसीसी को, उस पर सब अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ट्रांजिस्टर बेस इज, देखो ट्रांजिस्टर बेस इज ऑब्वियसली थिन एंड हाईली डोप्ड, ठीक है। इन विच रीजन ट्रांजिस्टर इज अ डिजिटल ऑपरेटेड डिवाइस, देखो बोथ, दोनों एक्टिव में एम्पलीफिकेशन करता है, कट ऑफ में 0, सैचुरेशन में 1, तो बोथ कट ऑफ एंड सैचुरेशन में डिजिटल डिवाइसेस की तरह यूज करेगा। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, यार वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई भी मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। एट द पीएन जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। जब भी मेरा पोटेंशियल बैरियर बनता है, ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर में कुछ चार्जेस होते हैं, इमोबाइल चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी सारे इधर होते हैं। तो ये मेरा बैरियर होता है। तो ये किस तरह के चार्जेस होते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स होते नहीं है, तो ए बी सी तो गलत है। फिक्स्ड डोनर और इम्प्योटर आयंस होते हैं, क्योंकि आयंस ही होते हैं ये, और पॉजिटिव नेगेटिव, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द पीएन जंक्शन इज रेज, द रिवर्स लीकेज करंट इज, देखो जो मेरा रिवर्स लीकेज करंट है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो इंक्रीज ही करेगा। The input resistance of FET is obviously more than BJT होता है भाई, more than BJT होता है, याद रख लो हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द पी चैनल FET, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, देखो ध्यान से देखना, कहीं गलती मत कर देना। जो अगर पी चैनल की अगर मैं बात करूं जेफेट्स वगैरह में, मॉसफेट वगैरह में, तो जनरली ड्रेन टू सोर्स होता है उनका करंट आईडी, ठीक है। अगर मैं पी की बात करूं तो उसका जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन होल की डायरेक्शन होती है, और ये पी टाइप की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी वही मेरी होल की डायरेक्शन होगी, जो कि ड्रेन टू सोर्स होगी, ठीक है। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा, तो इसका सोर्स टू ड्रेन है इसका आंसर, ठीक है। ए FETs एक ही चार्ज का यूज करते हैं हम तो किसी में भी, तो इसको यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं हम। व्हेन एन FET with FET the ratio of the output current changes against the इनपुट वोल्टेज, देखो आउटपुट करंट चेंज कर रहा है, सपोज करो IC चेंज कर रहा है मेरा, ठीक है। कॉमन बेस की अगर मैं बात करूं तो VEB की उससे, ठीक है। आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज, भाई इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये भी चीज याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स MOSFET कैन बी ऑपरेटेड, भाई बोथ इनहांसमेंट और डिप्लीशन दोनों में यूज किया जाता है। इन एन एक्टिव रीजन ऑफ CB कॉमन बेस, इनपुट एमिटर हो गया, आउटपुट मेरा कलेक्टर हो गया, वाइल द कलेक्टर बेस जंक्शन इज, आउटपुट हमेशा रिवर्स बाइस होगा, ठीक है, और बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, तो रिवर्स एंड फॉरवर्ड है, इसका आंसर इज बी। बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन करंट ट्रांजिस्टर इज C, कॉमन एमिटर हद से ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी दोनों स्पेशल पर्पस होते हैं, इसका यूज हम करते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए, इसका यूज हम इंपेडेंस मैचिंग में करते हैं, ठीक है।
विच कॉम्पोनेंट ऑफ अ कलेक्टर करंट इज कॉल्ड द लीकेज करंट? माइनॉरिटी भाई, लीकेज करंट माइनॉरिटी की वजह से ही होता है हमेशा। अ ट्रांजिस्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब देखो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला, ऑब्वियसली जो मेरा बीटा होता है, बीटा की वैल्यू मेरे को गिवन है अल्फा, मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा जो होता है मेरा, वो होता है मेरा बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू तुमको गिवन है, अल्फा अपने आप फाइंड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, देखो रिपल फैक्टर होता है मेरा कि कितनी स्मूथ है, कितनी रिपलिंग है आउटपुट में मेरी, मतलब कितना एसी कंपोनेंट है उसके आउटपुट में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो 1.21 होता है। डायरेक्ट है यार, ये सब पढ़ना है तुमको, डायरेक्ट वैल्यूज है। एंड द फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.48। इसका मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो 1.21 0.48, इसका आंसर हो गया मेरा सी। तो सब याद रख लेना। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज रेंज 2 से 5, कैरियर फ्रीक्वेंसीज 10 हर्ट्ज नहीं होगा यार, यहाँ किलो हर्ट्ज है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो द लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन, ठीक है, 2 से 5, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। कम्युनिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मेरा जो एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, करेक्ट है, एक फ्रीक्वेंसी बैंड है मेरा इनपुट का, जिसका रेंज कितना है 2 किलो हर्ट्ज से लेके 5 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, सिग्नल रेंज है 2 किलो हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज तक, इतना हो गया। और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है मेरा 10 वो हर्ट्ज नहीं है, 10 किलो हर्ट्ज है, तो ये 10 की बात कर रहा है, 10 किलो हर्ट्ज है। तो जब भी तुम मॉड्यूलेशन की बात करते हो, तुमको पता है मल्टीप्लीकेशन टाइप एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का हम यूज करते हैं। तो जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं, तो इसको जो मतलब ये वाली जो मेरी फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटर, इसको FM बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं FC, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम करते हैं तो दो साइड बैंड जनरेट होती हैं, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड। तो यहाँ पर देखो दो फ्रीक्वेंसीज है यार मेरी, 2 और 5, तो इसका मतलब मल्टी टोन है, मल्टी टोन मतलब मल्टीपल टोन्स। तो यहाँ पर देखो अब अगर हम करते हैं तो एक बार मेरे को करना पड़ेगा, तो जो रिजल्टेंट मेरी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो होती है FC प्लस माइनस FM आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो FM मेरी वैल्यू, FM की वैल्यू मेरी दो वैल्यूज हैं, एक 2 और एक 5। तो FC की वैल्यू मेरी फिक्स है 10। तो अगर मैं FC की वैल्यू 10 रखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 के हिसाब से देखता हूं, चलो एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं, FM1 ले लेते हैं पहले। तो FM1 अगर मैं लेता हूं तो FC प्लस का FM1 मतलब 2, तो 10 प्लस 2 12, प्लस है तो अपर साइड बैंड, तो इसका मतलब ये आ गया यहाँ पे 12, ठीक है, 12 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लोअर देखूंगा तो FC माइनस FM, ठीक है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, लोअर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड हो गया, लोअर साइड बैंड इधर प्लॉट करेंगे, ये मेरा 0 है बीच में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 8 किलो हर्ट्ज, ठीक है, हो गया। अब सेकंड फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं 5, तो 5 FM हो गया, तो FC प्लस का 5, FC कितना 10 प्लस 5 15, तो 12 से ज्यादा हो जाएगा दूसरे वाला, ये कितना हो जाएगा 15 है, तो ये मेरा कितना होगा 15 किलो हर्ट्ज, 15 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और अब अगर मैं 10 माइनस 5 करूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लोअर साइड बैंड्स भी लेनी है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 किलो हर्ट्ज। ये मैंने इधर बना दिया, उसको वैसे पीछे बनाना है, ठीक है, माइनस का 5 है वैसे तो। तो अब ये देखो ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था इसने, द लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन, देखो 8 से 5 किलो हर्ट्ज के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 8 हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये वाला आंसर इज ए, यही है ना, एक बार देख लेते हैं। यार माउस प्रॉब्लम भी कर रहा है कभी कभी थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ए ही है, देख लिया मैंने। अब इसका 73 क्वेश्चन देखते हैं। if the frequency modulation, if the modulating frequency, if the frequency of modulating voltage is doubled, the maximum frequency deviation, देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है मेरा वो होता है KF AM, ठीक है, KF AM होता है, ठीक है। इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, मॉड्यूलेटिंग मतलब जो मेरा मैसेज सिग्नल वाला वोल्टेज है, मैसेज सिग्नल की वोल्टेज को अगर मैं
डबल कर देता हूँ तो जो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, तो देखो फ्रीक्वेंसी डेविएशन जब मैंने बोला तो ये डबल होगा, तो ऑब्वियसली ये भी डबल ही होगा, तो मेरा ये सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डन। तो यार ये देखो, जब हम 74 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो इनपुट सिग्नल है, मतलब जो आ रही है रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, उसके एसोसिएटेड इमेज फ्रीक्वेंसी निकालना। तो इमेज फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट वगैरह तुमको पता ही होगा, मैं डिटेल नहीं जब बताऊंगा, डायरेक्ट इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इमेज फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है एफ एस आई इज इक्वल्स टू एफ एल प्लस में आई एफ। ठीक है, लेकिन मेरे को एफ एल की वैल्यू दी नहीं है, एफ एल होता है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है मेरी इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस में आई एफ के। ठीक है, एफ एल इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस में आई एफ, प्लस का ऑलरेडी एक आई एफ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एस प्लस का ट्वाइस ऑफ आई एफ, ट्वाइस ऑफ आई एफ। ये फॉर्मूला मेरा तब काम करेगा जब मेरी एफ एल की वैल्यू, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरी एफ एस से ज्यादा होगी। ठीक है, एफ एस से ज्यादा होगी। अगर कोई कंडीशन दे दी उसने कि जो मेरा सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, जनरली ये तो यही रहता है, एफ एल की वैल्यू ज्यादा होती है सॉरी, बट अगर कोई कंडीशन दे दी कि जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है मेरी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से, तब भाई फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा एफ एल है, एफ एस एफ एल माइनस आई एफ होगा। ठीक है, और एफ एल की वैल्यू देन उसके बाद एफ एस माइनस आई एफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो मेरा बनेगा एफ एस माइनस का ट्वाइस ऑफ आई एफ। ठीक है, ये मेरा इस कंडीशन के लिए बनेगा जब मेरा एफ एस ज्यादा होगा एफ एल से, और जब मेरा एफ एल ज्यादा एफ एस से उसके लिए तो यही है, और बाय डिफॉल्ट एफ एल ही हमेशा होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है सेकंड वाला। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में अगर कभी मेंशन कर देगा तो उस कंडीशन में ये लगाना। तो अब यहाँ पर देखो, तुमको एफ एस की वैल्यू दे रखी है और आई एफ की वैल्यू पुट करके सीधा निकाल दो एफ एस आई की वैल्यू। एफ एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ एस की वैल्यू 1200 और इसको 455, तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आई थिंक 2110 के आसपास आएगा, और तो 2110 का तो ए लगा दो, इसका 2100 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, बाय चेंजिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 1 इन एएम, चेंज इन ट्रांसमीटर पावर विल बी। ठीक है यार, ये होता है तुम्हारा 50% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तुम इसको अगर तुम पीटी की वैल्यू डालोगे, पीटी इज इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाय में 2, म्यू की वैल्यू पहले 0 डालोगे पीसी आएगा, और म्यू की वैल्यू 1 डालोगे 1, तो इससे क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ पीसी। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पीटी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इंक्रीज हो तुम्हारा 50% जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा। ठीक है, इंक्रीज बाय 50%, इंक्रीज बाय 50% डबल, ठीक है, जब तुम यहाँ पर 0 डालोगे तो इसकी पीटी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, पीसी के बराबर हो जाएगी, और जब तुम यहाँ पर 1 डालोगे तो 1.5 ऑफ पीसी हो जाएगी, 1.5 ऑफ पीसी हो जाएगी। तो ये देखो, पीसी से 1.5 पीसी होगा, 1 पीसी से 1.5 पीसी कितना होगा 0.5, 0.5 का जब तुम परसेंटेज निकालोगे कितना होगा 50%, वही है। ठीक है, नेक्स्ट इज 76, व्हाट पीडब्ल्यूएम पल्स पर पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। यार ऑब्वियसली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में तो विड्थ ही चेंज होगी ना, विड्थ है डायरेक्ट। अब मोड 14 काउंटर रिक्वायर्स कितने फ्लिप फ्लॉप, देखो जनरली जितना भी ये दे रखा हो, 14 हो गया या कुछ भी हो गया, इसकी बाइनरी लिख लो। ठीक है, 14 की बाइनरी क्या होगी, 1 2 4 8, 8 4 12, 13 14, ठीक है, 1 1 1 0। ठीक है, ये कितना हो गया मोड 14 काउंटर। तो मोड 14 काउंटर इतने स्टेट्स तक जाएगा, तो इतने स्टेट्स के लिए मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर देखो बिट कितनी लग रही है, 1 2 3 4, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, तो इसका मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप्स। इन जेके फ्लिप फ्लॉप
व्हेन j इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 1 द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट विल बी, या देखो अगर तुम इसके ट्रुथ टेबल जानते हो तो तुमको पता होगा कि जो j की वैल्यू होती है 0 1 एंड 1 0 के केस में जो j की वैल्यू होती है वही आउटपुट होती है, तो j 0 तो आउटपुट बिकम्स 0. Placing inverter at all inputs of an AND gate produces a gate. AND gate है, ठीक है, इसके इनपुट्स पे नॉर लगा दो या नॉट लगा दो दोनों पे, तो क्या बन जाएगा? अगर तुमने यहाँ A दिया, यहाँ B दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा? A बार डॉट B बार, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? A प्लस में B बार बाय डी मॉर्गन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया? नॉर बन गया B. To input in exclusive OR gate has the high output when the input bits are, देखो OR में जो XOR होता है उसमें जो आउटपुट मेरी हाई होती है जब मेरा डिफरेंट बिट्स होती है, ठीक है, OR की बात कर रहा हूँ जब डिफरेंट होगी, और XNOR की जब मैं बात करूंगा तो जब सेम होगी तब हाई होगा. हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट जॉनसन हैविंग 10 स्टेट्स. अब देखो जॉनसन काउंटर यार, अगर तुम यहाँ पे n फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हो तो जॉनसन काउंटर में 2n स्टेट्स होती हैं, और अगर इसकी जगह कोई और क्वेश्चन होता तो अगर रिंग काउंटर का क्वेश्चन होता तो इन रिंग काउंटर में जितनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, तो और जॉनसन में जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसका ट्वाइस एन स्टेट्स हैं इसके, ठीक है, तो 10 स्टेट्स कह रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 10 स्टेट्स हो जाए तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 5, ठीक है. An ideal op amp is, देखो जीरो इनपुट इम्पीडेंस, इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस, इनफिनाइट आउटपुट इम्पीडेंस, नन ऑफ दिस. या इनफिनाइट आउटपुट इम्पीडेंस कभी नहीं आइडियल होता है, ठीक है, वो सिर्फ जब एम्पलीफिकेशन के केस में आइडियल नहीं होता है, जब तुम मैचिंग करवाते हो तो उसके केस में ठीक है. जीरो इनपुट इम्पीडेंस, इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है. इफ एन op amp, in an op amp if the differential gain is इतना and the common mode gain is इतना, then तो ये देखो CMR का फुल फॉर्म ही होता है डायरेक्ट यार, AD बाय में AC, डिफरेंशियल गेन अपॉन में कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल गेन अपॉन में कॉमन मोड गेन. डिफरेंशियल गेन की इसने यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 4700 एंड कॉमन मोड गेन की 0.47. तो इसको सॉल्व जब करोगे तुम 4700 डिवाइडेड बाय में 0.47, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000. ये तुम्हारा कितना बनेगा? 10,000 बनेगा, ठीक है, 10,000 बन गया. अब इसको यहाँ डीबी में पूछा तो डीबी में निकाल दो. डीबी में कितना लगा दोगे? 20 लॉग, 20 लॉग लगा दोगे, तो 20 लॉग लगाने के बाद ये तुम्हारा बन जाएगा 80. ये देखो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 80 डीबी. तो ये तुम्हारा इतना इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन हो गया यार. मैं चाहता हूँ जो इस तरह का पोर्शन है ना, जो तुम्हारा ये अपना एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूंगा मेनली, तो इस एरिया पे बहुत कमांड कर लो. और मेनली देखो बाकी तुम कर लोगे लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमेशा से काफी ज्यादा वेटेज का टॉपिक रहा है और आता आया है हमेशा, ठीक है, हमारे टाइम पे भी आया था. हो सका है तो मैं सर से बात करके कुछ डेटा हो सकता है अपनी तरफ से भिजवा दूंगा, या मैं टेलीग्राम पे एक बार चेक कर लेना, सर से बात कर लेना, उनके पास भी सब पढ़ा ही होगा इससे रिलेटेड. और इसको डीप में नहीं पढ़ना है, 4-5 टॉपिक्स हैं ऊपर ऊपर से इंस्ट्रूमेंट के बारे में. क्या क्या बोला मैंने? फीचर्स पढ़ लो इसके, एप्लीकेशन हर इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, उनका कंस्ट्रक्शन एक बार देख लो कि है कैसा. पढ़ना नहीं है, बस एक बार देख लो, बस इतना बहुत है, इनफ है, ठीक है. और उनकी हर इंस्ट्रूमेंट की इक्वेशंस, जो मैं ऑलरेडी बोलता हूँ, इक्वेशंस देख लो कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, या किस तरह की इक्वेशन, किस तरह का आउटपुट वो फॉर्म करता है. अब आते हैं, देखो कंप्यूटर का सेक्शन है थोड़ा सा यार, कंप्यूटर के सेक्शन पे आ जाते हैं. तो इसमें कुछ यार ऐसा है नहीं, तुम आराम से इसको भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो हो जाएगा. मैं भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज का, ठीक है. तो द फर्स्ट स्टेप व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स इज नोन एज, सबको पता है यार, बूट अप, ठीक है. इफ द स्काई कोड फॉर ए इज 0110001, व्हाट इज द स्काई कोड ऑफ डी? अरे देखो ये होता है ए की वैल्यू होती है 65, 65, 66, 67, 68. डी कितना हो जाएगा? 68. 68 की बाइनरी निकाल लो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर तुम कर दो, ठीक है, ये चीज चेंज कर दो. तो ये 10 अगर तुम देखोगे तो 1 0 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर इसका डी. मर्ज सॉर्ट यूजेस, यार ये करता है डिवाइड एंड कनकर, ठीक है. द वर्स्ट केस टाइम टू सर्च अ गिवन एलिमेंट इन अ शॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट ऑफ द लेंथ इज, यार जो मेरा वर्स्ट केस टाइम होता है ना, वो होता है मेरा फॉर एन लिंक लिस्ट के लिए, ठीक है. लेंथ ऑफ एन ये है मेरा सी,
ठीक है। इन सी लैंग्वेज ये तुम्हारा प्रेसिडेंसी वगैरह ये तुम आराम से कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो टू लिस्ट, ये तो सिग्नल्स वगैरह में भी तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। साइज ऑफ एम एन, द रिजल्टेंट साइज विल बी एम प्लस एन माइनस वन। द एरर्स कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, सिंटैक्स एरर तुमको पता, ये देखते हो तुम हमेशा। व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर, देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया अभी ऊपर ही, ठीक है, ये नॉर था उसका आंसर, ठीक है। इन विच एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेसिंग ऑफ द ऑपरेंड इज जनरेटेड बाय द एडिंग, अरे ये इलेक्ट्रॉनिक सॉल्व के लिए भाई कोई ऐसा नहीं है कि तुम देखो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्व भी इसमें कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है इंडेक्स मोड एड्रेसिंग, ठीक है, जहां पर हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर में। अब देखो a प्लस बी ये साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव होगा। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर है, तुम इसको यहाँ भी रख सकते हो, सी को इधर भी ला सकते हो, बी को इधर ला के सी को इधर भी ला सकते हो, तो ये सारे के सारे ठीक है, इसके लिए ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज, यार इसको भी तुम एक बार देख लेना यार, क्योंकि मेरे को भी इतना ध्यान नहीं, तुम अगर पढ़ना तो इसको देख लेना, तुम्हारे कंप्यूटर वगैरह में सब आइडिया होगा तुमको इतना, ठीक है। इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेशन सिस्टम व्हेन द स्लॉट इज सस्पेंडेड, ये सब देख लेना। ये बता दो 96 रॉबिन, राउंड रॉबिन, ये फीफो यूज करता है यार, ठीक है, इसका आंसर है फीफो। इफ द कंप्यूटर, इफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर, यार अब देखो दो चीजें डिफाइन करेंगी, क्या वो मेरे सिस्टम के लिए कंपैटिबल है या तुम्हारे हार्डवेयर के लिए कंपैटिबल है, यही दोनों चीजें का, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। वर्चुअल मेमोरीज, देखो वर्चुअल मेमोरी कुछ नहीं होता, ये सबको पता ही होगा, वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन मेमोरी होती है एक्चुअली में, तो यहाँ पर सी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डीडीएल, अब ये देखो यहाँ पर ट्रंकेट एंड ड्रॉप दिया हुआ है जो कि डीडीएल कमांड्स है, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, तो एसक्यूएल भी थोड़ा सा देखना बेसिक, ऊपर ऊपर से सब देखना है यार, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ट्रंकेट और ड्रॉप ये मेरा डीडीएल है, डिलीट मेरा डीएमएल आता है, एंड ये मेरा रिवोक है डीसीएल। तो ये कह रहा है कि डीडीएल कमांड नहीं है, तो देखो डिलीट और रिवोक दोनों ही डीडीएल कमांड नहीं है, बट दोनों में से कोई भी एक लगा दोगे दोनों सही है, ठीक है। डीबीएमएस ऑफर्स एंड रिडंडेंसी ही होता है मेरे ख्याल से, तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव भी होना चाहिए यार, ठीक है। एन एट्रीब्यूट ऑफ अ सेट दैट कैन रेडिएट, ये टप्पल वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, बार तुम इसको, ये सारे जितने क्वेश्चन है ना ये सब एसक्यूएल वगैरह के, तुम एक बार इनको नजर मारोगे ना, नजर दौड़ाओगे सब हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो 14 विच ऑफ द टोपोलॉजी हैज एन डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स एन माइनस वन पोर्ट्स ऑफ द केबल, ये देखो मैश होता है यार, ठीक है, क्योंकि मैश होता है सबसे कनेक्टेड होता है, अगर एन डिवाइसेस है मैश सबसे कनेक्ट होगा, सिर्फ अपने से नहीं कनेक्ट होता, टोटल एन एन माइनस वन, ठीक है, तो वो क्या मैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस लूप बैक एड्रेस, ये देखो लूप बैक एड्रेस एक रिजर्व एड्रेस होता है जिसका रेंज होता है 127.0.0 से लेके 127.255.255.255, तो यहाँ पर यही चीज मेरा दिया हुआ है 0.0.0। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ टेस्टिंग इज यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एक्सेप्टेंस, इसका आंसर होगा ए। टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इन एक्चुअल एनवायरनमेंट विद एक्चुअल डेटा इज, यार देखो उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं, बिकॉज द क्लाइंट साइड अंडर द क्लाइंट की हम बात करते हैं इसके अंदर, टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर की, तो उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द आउटपुट एज द रिजल्ट ऑफ द केस टूल, यार इसमें सारा ही होता है, ये सारा का सारा ही होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फर्मवेयर, देखो फर्मवेयर का मतलब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर के ऊपर एम्बेडेड होता है, ठीक है, तो अब यहाँ तो सॉफ्टवेयर कह लो हार्डवेयर कह लो, बट यहाँ देखा है सॉफ्टवेयर ऑन हार्डवेयर, तो इसका आंसर होगा सी। ये तुम्हारा इतना टेक्निकल पोर्शन इधर खत्म होता है, और इसको अच्छे से करो यार, सारा है इसमें, ठीक है, मेजरमेंट का थोड़ा सा है, इसको अच्छे से करोगे तो तुम्हारा कवर हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है इतना, बट मेजरमेंट थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज मैं जानता हूँ बाकी तुम कर लोगे, मेजरमेंट में दिक्कत आई जाएगी, मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों को आती है, मुझे भी आई है मेजरमेंट में। मेजरमेंट को थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेटा अगर तुम उठाने जाओगे एक सानी से, देखो अगर तुम पढ़ना चाहो एक सानी पढ़ लो, काफी मोटी ग्रंथ है, लेकिन बी ए स्मार्ट रीडर, कुछ पॉइंट्स पढ़ो, पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाओ, ठीक है, उसमें सारी चीजें कवर होंगी। तो अब ये देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 111 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, यार मैनोमीटर यूज होता है डायरेक्टली, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल्स आर गिवन द सेम रीडिंग एट, इसका होता है ए -40 डिग्री, कि फारेनहाइट और सेंटीग्रेड का अगर तो फॉर्मूला देखोगे, फारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस +32, ठीक है, तो इक्वल कर दोगे
अगर तुम फारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल की ये बात कर रहा है तो फारेनहाइट की जगह सेल्सियस पुट कर दो। अब यहां से सेल्सियस की वैल्यू निकालोगे तो उतना ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द वुमेन एंटरप्राइज इज द राज्यसभा, यार ये सब ना उस टाइम के जेके क्वेश्चन है, तो मुझे भी इतना याद नहीं है, बट एक तुम, क्योंकि अब तो सारा करंट में आने वाला है तो एक बार देख लेना। वैसे ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, विच स्पाइस, हाँ ये वाला थोड़ा फेमस, इसको देखो RIS-81 का काफी ज्यादा नाम हुआ था यार। RIS-81 था, ये मेरा वेदर फॉरकास्टिंग के लिए मेरा सैटेलाइट भेजा गया था, ये मेरा सी बैंड में काम करता, तो इस तरह से भी चीजें याद रखो, ये मेरा सी बैंड में काम करता था सैटेलाइट, ठीक है। ये मेरा सी बैंड का सैटेलाइट था जो कि स्पेस में भेजा गया था वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, ठीक है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू प्रोफेसर हार्वर्ड, ये भी देख लेना यार एक बार, ज्योग्राफी या होम डिड गांधी कंसीडर द पॉलिटिकल गुरु, गोखले, सबको पता है यार, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है यहाँ पर, देखो जीएस दो तरह की होती है, थोड़े बहुत जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं, एक होते हैं मेरे डायनामिक, एक होता है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन जैसे ये चीज हो गई या ये वाला हो गया, तो इस तरह की चीजें स्टैटिक में आती हैं, जैसे ये वाला हो गया मैनोमीटर, ये स्टैटिक पोर्शन है। और जो मेरा डायनामिक होता है वो हर साल चेंज होता रहता है, अपडेट होता है। तो हर साल का जीएस जब भी तुम एग्जाम देने जा रहे हो उससे पिछले 6 महीने का या उससे पिछले मैक्सिमम 9 महीने का जीएस पढ़ो, दैट्स इट, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला किसी भी लीट में। और 1-2 क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा बाहर 6 से 9 महीने की, दैट्स इट। बाहर बुक्स आती हैं, एक छोटे से वो आ जाते हैं, बाहर प्रतियोगिता देना पड़ेगा समथिंग कुछ, उसके बाद 5-6 महीने की देख लो, जो डायनामिक है तुम्हारा वो सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ है यहाँ पर, देखो जैसे ये द डिस्प्यूट इज सेट टू कंटिन्यू फॉर द सम टाइम एंड नाइदर से विलिंग टू, इसको गिव ग्राउंड होगा, ठीक है। द बेस्ट वे इज टू डैश ऑफर इज द हर ड्रिंक ब्रेक द आइस, ठीक है। सी ही डैश द लेफ्ट व्हेन यू कॉल्ड ही लेफ्ट, इसका हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है। तो जिन जिन को मैं दिखा रहा हूँ वो डायरेक्टली यार तुम इसको एक बार कर सकते हो, दिस लेटर वाज सो बैडली। बाकी ये तुम्हारा एप्टीट्यूड वगैरह है यार, इनको तुम अच्छे से कवर कर सकते हो, तुमने पढ़ा भी होगा है तो तुम इसको कर सकते हो। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मैं सबको देख, तो वैसे मेरा पेन ही नहीं चल रहा, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत करके दिखा देता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, अच्छा ये वाला था ना, फिगर आउट होगा यार इसका, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ डायरेक्ट टैक्स, इसका यही होता है यार, वेल्थ टैक्स जो होता है तुम्हारा वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इसको वेल्थ बोला, हेल्थ बोलना चाहिए इसको। एन एरोप्लेन 132 साइन पी एक्स प्लस पीरियडिक एंड पी मस्ट बी ऑब्वियसली रेशनल होना होगा यार, ठीक है। अब ये देखो, लेट एफ एक्स इज 3x स्क्वायर, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन x टू, यार रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी एफ एक्स, किसी को भी डिफरेंशिएट करना। तो अब ये देखो, इसको एफ एक्स को तुम डिफरेंशिएट करोगे किसके हिसाब से, डी एक्स के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा ये 6x, ठीक है। अब इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो पहले x इज इक्वल टू 2 पे देखोगे, x की वैल्यू 2 डालोगे तो कितनी आएगी वैल्यू 6 टू 12, और x इज इक्वल टू जब तुम 3 डालोगे तो कितना आएगा 18। एवरेज पूछा है तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय में 2 कर दो, ठीक है। 30 डिवाइड बाय में 2 कितना आ गया 15, आंसर इज बी। ऐसे ही एफ एक्स 3x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंस्टेंटेनियस पूछा है, इंस्टेंटेनियस जैसे सिंपल पीछे वाला क्वेश्चन किया था 2 पे 6 टू 12 इंस्टेंटेनियस, डायरेक्टली जो 2 12 था वो इंस्टेंटेनियस ही था, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द, देखो मैक्सिमम आरडी शर्मा की बुक उठाओ, सब दिया हुआ भाई वहां पर, छोटे छोटे क्वेश्चंस वहां से तुम मैथ्स के उठा लो, बाकी प्रैक्टिस तुम करिए, आई नो तुमको आता होगा, बट एक बार देख लेना है सारा कुछ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए तरीका होता है क्या कि एफ एक्स दिया होता है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, या इसको डिफरेंशिएट कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, तुम्हारी एक्स की कोई वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को वापस से fx में पुट कर दो। अगर वो x की, अब जो fx की वैल्यू, जो तुम x की वैल्यू यहां पुट करोगे निकालने के बाद, वो fx की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 0 होगी तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, अगर लेस देन 0 होगी तो मिनिमम वैल्यू है, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, या 10x का तो पूछो ही मत, इसका भी बहुत ज्यादा है, इसका भी है, एक ही है यहाँ पे, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इज दिस, ओके।
इसको भी तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। ये देखो एपी जीपी के सिंपल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के भी यहाँ पे सिंपल इन्होंने मिक्स कर दिया यार, एप्टीट्यूड वगैरह को, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड में भी हो जाता है, तो ये सब यार तुम बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ सारा कवर कर दिया है, ठीक है, डन हो चुका है तुम्हारा इतना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो एक बार देख लेंगे, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, कुछ और जानना होगा तो बता देना, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड। मैथ एक बार कर लेना। बाकी मैं मेजरमेंट के लिए सीरियसली रिकमेंड करूंगा ना, मेजरमेंट अगर पढ़ सकते हो भाई बहुत अच्छे से पढ़ डालो, लपेट डालो, चाट लो भाई मेजरमेंट को, ठीक है ना, क्योंकि मेजरमेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा है। तुमको सिर्फ ऊपर के हर टॉपिक के पहले 2 पेज पढ़ लो ना, एक सानी के, मैं गारंटी बता रहा हूँ 2 से 3 पेज पढ़ लो, पूरी मेजरमेंट खत्म। मेजरमेंट का कोई डेप्थ नहीं है, मैंने क्या बोला, फीचर्स पढ़ लो, हर इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, ठीक है, और उनके बीच जो डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा वो पढ़ लो, और बाकी उनकी इक्वेशन देख लो कि हर एक डायरेक्ट इक्वेशन होती है, उनकी स्केल्स की इक्वेशन होती है कि वो यूनिफॉर्म के लिए है, क्यूब के लिए है, स्क्वायर के लिए, जैसा भी होगा, ठीक है, तो उसके लिए करो। बाकी तैयारी करते रहो यार, बेस्ट ऑफ द टाइम है तुम्हारे पास, कोरोना में फंसे हो, इससे अच्छा टाइम और क्या हो सकता है यार। अगर तुम इस टाइम भी कुछ करके नहीं निकले तो दैट विल बी फॉल फॉर यू, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम तुमको मिल गया, तुम बहुत आगे इसमें ग्रो कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही कहूंगा। बाकी प्रिपेयर करते रहो एंड आई विल कवर कि सारा का सारा थोड़ा जल्दी हो जाए यार, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा फ्री नहीं रहता हूँ यार मैं, ऑब्वियसली सच बताऊं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे होता जाएगा भेजते जाएंगे, क्योंकि काफी डिमांड आई थी कि बच्चे मांग रहे हैं, तो ठीक है यार करते हैं धीरे धीरे, आज पहला हो गया, बाकी भी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाएगा कि एकदम से मैं एक ही दिन में 10-10 बनाने बैठ जाऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने लो, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियो, एडिट एंड ऑल एवरीथिंग, इट टेक्स टाइम। तो हम आराम से करते हैं इसको, जितना हो सकेगा मैं अपने हिसाब से करा दूंगा, बाकी पेपर्स में सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखो, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है, ओके, थैंक यू।